Good morning, class 7. As you know, in the previous class we were discussing our fourth chapter, the gift of love, and we studied till that James meet with Paul meet with James. So let's start with the page number 27, the remaining portion of this chapter. That अभी पॉल जो है जेम्स से मिला है, तो अब आगे की स्टोरी क्या होती है हम वो जानेंगे. इवन दो ही डिडंट फील लाइक इट, पॉल वॉज coaxed to join in some of the games. Hey, James said, I need a partner. Even though he didn't feel like it, उसको जबकि वो ऐसा नहीं लगता था, but sometimes पॉल को गेम खेलने के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती थी और गेम्स खेलने होते थे. Hey, James said, I need a partner. जेम्स ने कहा कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है. First there was a badminton. Paul thought it was a stupid hitting a bird over a net. तो पहले उसने बैडमिंटन खेलने के लिए ऑफ़र दिया, पर पॉल को ये लगा कि ये बिल्कुल ही एक घटिया आइडिया है कि एक कॉक को बर्ड को हम नेट के आर पार बस मारते रहें. And all he seemed to do was miss the other court area or shoot too high. उसको बस ये लगता था कि हमें करना क्या है, हमें बस एक कोर्ट एरिया को पार करना है और बहुत ऊंचाई पर मारना है. Even the wind was against him, और जो हवा थी वो भी उसके खिलाफ थी, उसको ऐसा लग रहा था. Then they played horseshoes. फिर उन्होंने horseshoes खेला है. I can hardly lift them. मैं उनको बहुत ही मुश्किल से उठा पाता था. जेम्स ने कहा. Paul was 10 and a year older and didn't seem to mind the weight. और पॉल जो था वो 10 वर्ष का था, तो उसके लिए जो वज़न था वो इतना मैटर नहीं करता था, वो इतना मायने नहीं रखता था. He even got a ringer. उसके पास रिंगर भी था. It must have been pure luck, he figured. उसको ऐसा लगता था कि ये बस उसकी किस्मत है. If everyone lined up for water tours, सभी पानी पे के आसपास रहते थे. Adults and kids joined in. बच्चे और बड़े उसको ज्वाइन कर रहे थे. Of course, Paul slipped on the wet grass. पॉल जो था वो गीली घास पे फिसल गया था. Why did he have to lose out so soon? वो इतनी जल्दी क्यों हार जाता था? Everyone seemed to be laughing at him, flopped on the ground. सभी उस पे हंस रहे थे क्योंकि वो फिसल चुका था. He noticed James wasn't joining their laughter. पॉल ने ये महसूस किया कि जेम्स अभी जो हंस रहे थे उस पर उनके साथ उस पर नहीं हंस रहा था. Most people decided to go for a swim after working so hard at the game. सभी लोगों ने रिलैक्स करने के लिए स्विम जाने का डिसाइड किया गेम्स खेलने के बाद. Paul and James had permission to use Mr. Lawrence two-man rubber dinghy. तो पॉल और जेम्स को मिस्टर लॉरेंस की रबर की डिंग यूज़ करने की परमिशन थी. आफ्टर पुटिंग ऑन लाइफ जैकेट दे waded through a foot of water and climbed in. The water is too cold for swimming, said James. So basically what is rubber ding, जिसके थ्रू हम प्रोटेक्टेड रहते हैं. When we swim, we don't know how to swim in a big pool. So it helps us to protect. So पानी बहुत ही ठंडा था और उसमें जाना बहुत ही मुश्किल था. Don't be such a chicken, Paul answered back. तुम इतनी शैतानी मत करो. और पॉल ने आंसर दिया. Then he gave his friend a playful splash. फिर उसने अपने दोस्त को एक बहुत ही खेलने वाली और मस्ती वाली एक ज़ोर से उस पे पानी उसके ऊपर स्प्लैश किया, उसके ऊपर डाल दिया. Hey, stop that, James shouted. जेम्स ने बोला कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो. और I'll go to the shore. मैं किनारे पे चला जाऊँगा. Paul stopped. Paul रुक गया. He really wanted a little company. Paul को इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, साथ की बहुत ज़रूरत थी. After paddling around a while, he jumped out and then lay in shallow water that barely covered his back. Sorry. बहुत ज़्यादा
पैडलिंग करने के बाद, बोट चलाने के बाद Paul was little tired and they decided to go back and he went in water. जो कि उसके बैक तक आ रहा था. The coolness soothed his itchy mosquito bite. उसको जो मच्छर ने काटा था, पानी की ठंडक से उसे आराम मिल रहा था. Hey, come on and join me, he called out. James did. उसने जेम्स को बोला कि आओ और मुझे ज्वाइन करो. In a few minutes the boy were wrestling and chasing each other into the water. कुछ समय बाद दोनों ही आपस में कुश्ती लड़ रहे थे और एक दूसरे को चेज कर रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे पानी के अंदर. Come on, stick your head under, Paul said. पॉल ने कहा अपना सर अंदर रखो. जेम्स wouldn't. जेम्स ने ऐसा नहीं किया. Are you scared of something? Paul asked. पॉल ने कहा क्या तुम किसी चीज से डर रहे हो? Then James answered yes. Paul couldn't believe his ears. पॉल को उसके कानों पे यकीन नहीं हुआ. You mean he was better than James at something? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उसको ये लगता था कि वो जेम्स से किसी चीज़ में बेहतर था? यूजुअली जेम्स वॉज गुड एट एवरीथिंग. सामान्य तौर पे जेम्स जो था वो पॉल से हर चीज़ में बहुत अच्छा था. इवन मेकिंग फ्रेंड्स, यहाँ तक कि दोस्त बनाने में भी. यू आर सेइंग यू आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ वाटर. क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम सच में पानी से डरते हो? It is not even over your head here, you know. ये तुम्हारे पानी से भी, तुम्हारे सर से भी ऊपर नहीं है. क्या तुम ये जानते हो? I said I am afraid. Okay, मैंने कहा मुझे डर लगता है. समझे तुम? Then everyone was being called back from the shore. और फिर सभी किनारे पर से वापस आ गए. The scavenger hunt was about to start. जो scavenger hunt था वो शुरू होने वाला था. Which one is your father? Paul asked as they climbed the bank. जैसा कि वो किनारे पे गए, पॉल ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन से हैं? What do you mean? James said. जेम्स ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? You know where is your father? क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? Everyone's father is here except mine. सबके पिताजी यहाँ हैं मेरे पिता के अलावा. He is too busy to come. वो बहुत व्यस्त हैं यहाँ आने के लिए. All he seems to do is buy me gifts, especially when he breaks a promise. वो सिर्फ मेरे लिए तोहफे खरीदना जानते हैं और स्पेशली तब, ज़्यादा तौर पर तब जब वो अपना वादा तोड़ देते हैं. At least he is alive, James said quietly. जेम्स ने कहा कम से कम वो जिंदा तो हैं. What did you say? तुमने क्या कहा? Paul stood back and looked at his friend. पॉल खड़ा हो गया और उसने अपने दोस्त की तरफ फिर से देखा. You mean your father is dead? क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं? It happened when I was a little kid, James answered. जेम्स ने कहा जब मैं छोटा था तभी ऐसा तब हुआ. I don't want to talk about it now, okay? अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. Paul was very thoughtful as he followed his friend back to the others. He didn't say much as the teams were picked, but he did try to end up the same team as his friend, except he didn't. Paul was very thoughtful. Paul बहुत ही विचारों से भरा हुआ था और उसने अपने दोस्त का साथ दिया. He didn't say as much as the team was picked. और उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा. But he did try to end up to the same team as his friend. और उसने अपने दोस्त की ही टीम में रहा, except he didn't. जबकि वो नहीं रहा. Captain lead each group to a series of trails where they had to follow clues. कैप्टन ने अपने जो कुछ समूहों में बांट दिया और उन्हें कुछ क्लूज ढूंढने थे जिन्हें वो फॉलो करते हुए गए. एंड सर्च फॉर अ रेड टेप. और उन्हें एक छुपी हुई रेड टेप को ढूंढना था. देन वन रनर फ्रॉम ईच टीम हैड टू ब्रिंग इन ऑल द डिस्कवर्ड आइटम. फिर हर एक टीम के एक रनर को उन खोजे हुए जो सामान है उनको लाना था. As luck would have it, both friends were the last to run on each team. दोनों ही दोस्त की किस्मत ऐसी थी कि दोनों ही दोस्त लास्ट रनर थे जिन्हें सामान लाना था. Paul noticed that his friend couldn't run as fast as himself as they both headed for the finish line. पॉल ने ये नोटिस किया कि उसका दोस्त तेज नहीं भाग पा रहा है
और उन्हें जैसा कि फिनिशिंग लाइन आ गई है, इनफैक्ट जेम्स वॉज अ बिट ऑफ अ क्लच, द यंगर बॉय इवन ट्रिप्ड ओवर हिज ओन फीट एज इफ हिज लेग्स वांटेड टू ट्रैवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो छोटा बच्चा था उसकी जो पैर हैं वो इस तरीके से अलग ही दिशा में भाग रहे थे। आफ्टर द गेम वॉज ओवर, जैसा कि गेम ख़त्म हुआ, जेम्स फ्लंग हिमसेल्फ ऑन अ वेट ग्रास, जेम्स ने अपने आप को गीली घास पे पटक दिया। ही डिडंट माइंड इफ ही गॉट वेट, उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा अगर वो गीला हो गया। ही वॉज स्टिल इन अ बाथिंग सूट, वो अभी भी बाथिंग सूट में था, नहाने के कपड़ों में। ही वॉज रियली टायर्ड एंड हिज राइट लेग हर्ट, वो बहुत थका हुआ था और उसकी सीधी जो टांग थी वो चोटिल हो चुकी थी, उसमें चोट लग चुकी थी। सो आई गेस दिस इज फॉर वी आर डन फॉर टुडे। In the next class, we are going to discuss the remaining portion of this chapter. Till then, listen this audio video carefully and try to understand the story of gift. Okay? Thank you.